In this video, we will discuss about a linear differential equation of second order. So we start the linear differential equation of second order. So we have the word linear. Linear means the degree of the differential equation is 1 is called linear, or second order, that means order 2. अब order और degree कैसे पता करते हैं? Suppose we can take an example. So we take the example. This is the differential equation d2y over dx square plus dy by dx plus y is equal to 0. So order means derivative. So highest derivative of this 2. So order means highest derivative. So order is 2 and degree power of highest derivative. So power of highest derivative. Here power is 1. So degree is 1. So this is the differential equation of order 2 and degree 1. Okay. So now here we are going to solve the linear differential equation of second order. So now the general form, we write down the general form of the differential equation of second order. So we write down this as d2y over dx square plus p dy by dx plus q y is equal to r. So this is our equation number 1. So this is the general form. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, the coefficient of d2y over dx square should be 1. So that means second order differential equation should start from d2y over dx square. So this is the differential equation with order 2, and always start from second order d2y over dx square. And here we write down the p, q, and r be the function of x. Function of x. This means variable. Here x is the independent variable. So when we write dy upon dx, that means y work as a dependent variable. So y work as a dependent variable or x be the independent variable. So x be the independent variable. So x is the independent variable, और जो coefficients होंगे, the coefficient always in function of with x means independent variable. So we remember this differential equation. This is the second order differential equation, or in this video we are going to discuss only solution of second order differential equation. So this is the second order with a variable coefficient. There are two types of equation, that may be constant coefficient and a variable coefficient. So here we are going to solve variable coefficient of second order differential equation. So PQR are the function of x. Now, so we start the first part for solving second order. So to solve the linear differential equation, so we write down as to solve the linear differential equation of second order with one of the part of CF is given, part of CF is given or known. So this is the first method. When part of CF is known or given, so we are going to find out the solution of the
second order differential equation. So first we will discuss about the working procedure, how to solve such type of differential equation by using this method. First, so we start the given differential equation, given differential equation, we write down in short differential equation in the form d2y over dx square plus p dy by dx plus qy is equal to r. So this is our equation number 1. So we know that p, q and r are function of x. So we can write down here also. So where p, q and r be the function of x. So be the function of x. Now, uh, while solving the problems, we have to remember. So this is the important step. So very important step. So what step we will discuss here? So that means the coefficient. So the coefficient of d2y over dx square should be 1. जो d2y over dx स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. Should be 1. If it is not 1, if it is not 1, we make 1 by dividing, then we decide P, Q and R. तो सबसे पहला स्टेप वही इंपॉर्टेंट स्टेप है. तो फर्स्ट वी चेक द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. That given differential equation having the coefficient of d2y over dx square is 1 or not. अगर 1 है तो we can decide PQR, and otherwise first we make 1, then we will decide the PQR. अब एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर. तो फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि x d2y over dx स्क्वायर प्लस 3x dy by dx plus x minus 2 into y is equal to 0. So here the coefficient of d2y over dx square is not 1. अब इसका coefficient 1 नहीं है. First we make 1 by dividing x. So we divide the differential equation by x. तो x से divide कर देंगे differential equation को. तो ये क्या हो जाएगा? So this can be written as 3x upon x. So means x upon x. So x to x cancelled. और plus x minus 2 upon x into y is equal to 0. So x to x cancelled here. So ये differential equation फिर हमारी d square y upon dx square plus 3 dy by dx plus x minus 2 upon x into y equal to 0. So now we see that this equation change into the form of equation 1. अब इसकी फॉर्म में आ गई तो वी कैन डिसाइड द पी क्यू एंड आर. तो जब पी क्यू आर डिसाइड करेंगे तो पी क्या होगा हमारा 3. तो कोफिशिएंट ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज पी. तो कोफिशिएंट ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज पी एंड क्यू कोफिशिएंट ऑफ वाई. तो दिस विल बी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स और राइट हैंड साइड आर इज 0. देन वी डिसाइड द पी क्यू आर. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि कोफिशिएंट जो है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. Now, then we decide PQ and R. So after deciding PQR, so we use some trial methods. So we focus on the, so we have some trial method. We have some trial methods. So we use the trial methods for obtaining the part of CF, complementary function. So first part is that means first trial method 1. If after deciding the PQR, if P plus QX is equal to 0, अगर P और Q की वैल्यू यहाँ पुट करने पर equation gives us 0, so P plus QX equal to 0, so then we can say that Y equal to X.
y equal to x is the part of CF, is the part of CF, the complementary function. That means when we will solve the differential equation. So this is the y equal to x be the part of CF of this differential equation. Now, second, we have a second trial method. If 1 plus p plus q is equal to 0, so then y equal to e raised to the power x is the part of CF, part of CF, complementary function. So third, we have a trial third, 1 minus p plus q is equal to 0. So then y equal to e raised to the power minus x is the part of CF, part of CF. Now, fourth trial method. So fourth trial method, we have the general form. So we write down the general form of second and third. So 1 plus p upon a plus q upon a square is equal to 0. So we can say that then y is equal to e raised to the power ax is the part of CF, is the part of CF. So now, so after remembering these part of CFs, we move to the methods. That means first we start with first rule. So let y is equal to v into known part of CF, known integral, or we can say that known part of CF, part of CF is the complete solution, is the complete solution of given differential equation, of given differential equation, that is 1. So now अब नोन पार्ट ऑफ सी एफ, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे. अब नोन पार्ट ऑफ, इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है. अब सपोज कर रहे हैं कि हम जैसे y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x उसका पार्ट ऑफ सी एफ आ रहा है. अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम इसी में साथ ही साथ जोड़ रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें. अज्यूम कर रहे हैं कि लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इज द पार्ट ऑफ सी एफ. अगर y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इज पार्ट ऑफ सी एफ, तो उस केसेस में हम क्या लिख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देन लेट y इक्वल टू v into known part of CF. तो y equal to v into e raised to the power x is the complete solution, is the complete solution, complete solution of equation 1. Now, अब इक्वेशन 1 में कौन कौन से टर्म्स हैं? एक तो टर्म है हमारा फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, और सेकेंड टर्म है हमारा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. तो इसको क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स. तो डिफरेंशिएट, अब इसको कोई इक्वेशन नहीं दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं एबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. अब एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, अब v जो है v भी हमारा क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स होगा. तो v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x. तो जब v फंक्शन ऑफ x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट फंक्शन हमने v रखा, और e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e रेज टू द पावर x होता है, और प्लस और v का डिफरेंशिएशन जब v फंक्शन x का है तो क्या हो जाएगा? dv अपॉन dx हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन भी राइट डाउन है सेम. और अगेन डिफरेंशिएट अगर हमें इसी को करना होगा 2 टाइम, तो दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड एज v into integration of differentiation of e raised to power x is e raised to power x plus differentiation of first dv upon dx into e raised to the power x plus first for second term dv upon dx into differentiation of this is same plus differentiation of dv upon dx is d square v upon dx square into e raised to the power x. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दो टर्म एक जैसे आ रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, तो v e raised to the power x plus 2 dv upon dx into e raised to the power x, और प्लस e raised to the power x into d square v upon dx square.
ये जो दो इक्वेशन आ गए हमारे, फर्स्ट इक्वेशन वी हैव कैलकुलेटेड dy अपॉन dx, और सेकंड से हमने क्या कैलकुलेट किया, d2y ओवर dx स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है हमें, यहाँ से y, यहाँ से dy अपॉन dx, और फ्रॉम दिस इक्वेशन d2y ओवर dx स्क्वायर, दीज थ्री वैल्यूज। सो वी, सेकंड स्टेप हमारा, वी फॉलो दैट। सो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy upon dx and d2y over dx square in इक्वेशन नंबर वन। अब इसको कहाँ पुट करना होगा, इक्वेशन नंबर वन में। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और वाई की वैल्यू, सो वी विल पुट इनटू द इक्वेशन नंबर वन। तो जब वन में पुट कर देंगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ओके, अब हम वापस जा रहे हैं उसी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। Okay, so then the differential equation can be written in the form. So we write down it. So d2v over dx square into e raised to the power x. So you write down e raised to the power x, or plus 2 e raised to the power x into dv upon dx, or plus v dv upon dx। ये तो किसकी वैल्यू है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, और प्लस p, p और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, v e रेज टू द पावर x प्लस, और dv अपॉन dx इंटू ई रेज टू द पावर x, और प्लस q इंटू y, और y हमने क्या अज्यूम किया है, v e रेज टू द पावर x, और दिस इज इक्वल टू r। और दिस इज अवर सेकंड स्टेप। अब आगे क्या करना है, अब वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप विल बी दैट इज कॉल्ड थर्ड स्टेप। अब इसमें क्या करना होगा, वी रीअरेंज, rearrange the above differential equation, above differential equation। अब इस differential equation को rearrange करना होगा। rearrange का मतलब दैट मीन्स फर्स्ट हम रखेंगे d2v over dx स्क्वायर का टर्म, देन वी राइट dv upon dx, और देन वी राइट द v term। so here we have only single term of d square v upon dx square, so first we write down, so here we write down d e raised to the power x। so means जो कोफिशिएंट आएगा आपका फर्स्ट टर्म में आफ्टर रीअरेंजिंग, तो फर्स्ट वी राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन फर्स्ट वी राइट डाउन द डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड टर्म जो आएंगे वो किसके आएंगे, डी बी अपॉन डी एक्स की जो कोफिशिएंट्स होंगे, और प्लस, और जो थर्ड टर्म आएगा वो किसका कोफिशिएंट होगा, वी का, और दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, आर। और ये होगी फिर हमारी इक्वेशन नंबर थ्री। अगर हमने इसको इक्वेशन टू दिया है तो, इसको नहीं दिया हमने, दैट कैन बी गिवन इनटू एज इक्वेशन नंबर टू। ओके, अब जब यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे तो ये जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ v ऑलवेज जीरो आएगा, शुड बी जीरो। so if your coefficient of v is zero, so then your calculation is correct। ये आपका एक चेक पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, एक चेक पॉइंट हो गया कि अगर यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ v जीरो आ रहा है, इट मीन्स अवर कैलकुलेशन इज राइट, अदरवाइज रॉन्ग। दैट मीन्स अगर कोफिशिएंट v समथिंग कुछ भी बच रहा है, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ सी है, तो इट शुड बी जीरो। नाउ, so here we mention this, so that means very very important part here, if the method, जो मेथड हम लगा रहे हैं, और वी कैन से दैट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन is correct, then the coefficient, जो कोफिशिएंट होगा किसका, v का, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। तो ये चेक पॉइंट आपका फर्स्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या होंगे, इसके लेंथी क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट चेक पॉइंट हमारा ये होगा कि जो कोफिशिएंट है v का वो जीरो आना चाहिए। और जब कोफिशिएंट v का जीरो आ जाएगा इन इक्वेशन नंबर थ्री में, फिर हमारे पास क्या रहेगा, फिर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म आएगी, सो दैट फॉर्म विल बी
we write into this form, the d square v upon dx square और प्लस कोफिशिएंट ऑफ dv अपॉन dx इज इक्वल टू r। तो जो इक्वेशन रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहां से हमें मूव करना है फोर्थ स्टेप के लिए। we will move on to the fourth step for solving this differential equation. So moving to the fourth step, so now we put, अब हमें क्या करना होगा, इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा सॉल्व करने के लिए। सो वी पुट dv अपॉन dx, dv अपॉन dx इज इक्वल टू p, और d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dp अपॉन dx। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब सेकंड ऑर्डर है, उसे कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में फॉर सॉल्विंग। तो जब फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे तो द differential equation 4 can be written into the form of this, तो dp upon dx और प्लस कोफिशिएंट और into p is equal to r। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 5। सो दिस इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की होगी। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर जनरल फॉर्म क्या होती है आपको पता ही होगा। तो दिस विल बी द डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये, और इस केस में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर भी हमारे दो केसेस बनते हैं, दो केसेस बनेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। दो केसेस में, अब पहला केस क्या होगा, अब केस फर्स्ट, अब केस फर्स्ट डिपेंड करेगा राइट हैंड साइड पर। अगर आर जीरो है, अगर आर हमारा जीरो है, सो देन वी यूज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेबल वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जो फर्स्ट मेथड हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं वो हम अप्लाई करेंगे अगर हमारा आर जीरो आ रहा है तो उसमें क्या करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए। तो दैट मीन्स अगर हमारा डी पी आ रहा है तो डी पी के साथ फंक्शन ऑफ पी आएगा और प्लस डी एक्स के साथ फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, इट इज इक्वल टू जीरो। तो देन वी इंटीग्रेट, तो इसको क्या कर देते हैं, सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ पी, तो वी गेट पी, तो हमें पी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी जो भी आएगी। अब दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस पे हम जाते हैं, तो सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस कर आर हमारा जीरो नहीं है, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो आर इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, तो देन वी मेक, अब यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना होगा। तो वी चेक द इक्वेशन 5। अब हमारी जो फिफ्थ डिफरेंशियल इक्वेशन है जो 5, द कोफिशिएंट, अब इसमें भी हमें क्या चेक करना है कि कोफिशिएंट ऑफ dp अपॉन dx शुड बी 1। तो उसको भी हमें चेक करना है कि जो कोफिशिएंट है dp अपॉन dx का वो 1 है या नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है कि द कोफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx शुड बी 1। तो ऐसे ही यहाँ पर जो dp अपॉन dx है इक्वेशन 5 में, इसका भी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे बाई डिवाइडिंग, सो शुड बी 1। अगर 1 है सो फिर उस केस में हम क्या करते हैं कि जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या प्रोसीजर होता है, वी हैव ऑब्टेन्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वी कैन कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी इंटू डी एक्स, हियर इज कैपिटल पी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव टू कैलकुलेट एज, और देन व्हेन वी कैलकुलेट द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जब फाइंड आउट करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो P स्मॉल p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी कैलकुलेट होके आएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन R इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू dx और प्लस कांस्टेंट c।
So we have to calculate the solution. So after calculating the solution, अब यहाँ से भी जब सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद भी हमें क्या करना होगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ से भी हमें पी की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। अब पी जब ऑब्टेन हो जाएगा तो पी को क्या करेंगे कि हमने क्या किया था, तो अगर रिप्लेस करेंगे अब वी नो, अब हमने पी जो पुट किया था डीवी अपॉन डी एक्स को पी पुट किया था। ओके, सो वी विल बैक हियर। सो वी हैव पुट dv अपॉन dx इक्वल टू p। अब वापस जाएंगे तो वी नो p क्या है हमारा, और p है dv अपॉन dx। और dv अपॉन dx, तो देन वी पुट द वैल्यू ऑफ p हियर, जो भी वैल्यू p की फाइंड आउट होगी आएगी, तो उसको क्या करना होगा, फिर हमें उसको करना होगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद वी फाइंड द वैल्यू ऑफ p, v सॉरी, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने के बाद v। और जब v की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी, सो दिस वैल्यू कहाँ पर पुट करनी होगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2, जहां पर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन अज्यूम किया था। y इज इक्वल टू v इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। दिस इज हमने पार्ट ऑफ सी एफ माना था, जनरल में जो भी पार्ट ऑफ सी एफ आएगा मीन्स पार्ट ऑफ सी एफ। So this is the complete solution. Is the complete solution of one. Okay. So this is the working procedure how to solve the first that means first methods problems where part of CF is known. One part of CF is known. That means this is based on the variable coefficients. So now we will take one question based on this so you can understand the method easily. एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिससे आप मेथड और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो so we have the question, solve the differential equation x d2y over dx square minus 2x minus 1 dy upon dx प्लस x माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं जिसका आरएचएस पार्ट जीरो है। अब यहीं से आपका डिसाइड हो गया कि जब आरएचएस पार्ट डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जीरो है तो हमें इसमें कौन सा मेथड लगाना होगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आरएचएस जीरो है इसकी। ओके, आगे तक का मतलब आपको ध्यान आ जाए। तो नाउ, तो व्हेन वी डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा स्टेप वन क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर शुड बी वन। तो यहाँ पर प्रोसीजर भी हम लिखते जाएंगे साथ के साथ। सो द कोफिशिएंट ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर should be 1, should be 1, so that means it is not 1 here, so it is not 1, so we make 1 by dividing the equation 1 by x. So x से डिवाइड कर देंगे, so this can be written as d2y over dx square minus 2x minus 1 upon x into dy upon dx और plus x minus 1 upon x into y is equal to 0। अब इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 एज पर अवर कन्वीनियंट। नाउ, अब जर्नल फॉर्म क्या है, तो अब जर्नल फॉर्म भी हमको ध्यान रखनी होगी। तो जर्नल फॉर्म, तो जर्नल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज d2y over dx square, so d2y over dx square plus p dy by dx plus q into y is equal to r। so now we compare, तो क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे दोनों को। कंपेयर करके हमें क्या फाइंड करना होगा, पी क्यू और आर फाइंड करना होगा।
तो P, अब देखिए जो जर्नल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें क्या है, दोनों जो पॉजिटिव साइन है यहाँ पर प्लस, और ये भी प्लस साइन है। बट हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पे क्या है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वी कंसीडर द नेगेटिव साइन। तो जो P होगा दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होगा, और कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, -2x - 1/x, तो माइनस साइन भी लेना होगा। और Q क्या होगा, Q इज x - 1/x होगा, और राइट हैंड साइड तो इसकी जीरो हुई, तो R हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ अब इसमें चेक करना है हमें कि जो पहला हमारा मेथड है जो पार्ट ऑफ CF के लिए, वो क्या है, P+QX = 0। अब P+QX = 0 तो नहीं बनेगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ट्रायल मेथड्स हम यूज करते हैं। सो हियर यूज द ट्रायल मेथड्स। तो ट्रायल मेथड्स के लिए जब हम यूज करेंगे कि जैसे P+QX, क्या जीरो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2x - 1, तो P+QX जीरो करने पर नहीं होगा। तो हमें सेकंड मेथड क्या है हमारा, कि 1+P+Q, 1+P+Q = 0 हो सकता है क्या, लेट ये चेक। सो यहाँ पर रखा हमने 1 माइनस, so this will be 2x - 1/x और प्लस x - 1/x। अब यहाँ से क्या होगा, दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा एलसीएम ले लेंगे x, तो क्या हो जाएगा, x - 2x और +1 हो जाएगा, और प्लस x और -1 हो जाएगा। तो जो +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ माइनस का 2x है और ये प्लस के 2x हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा समथिंग अपॉन एक्स, मतलब 0 समथिंग, सो दैट गिव्स अस 0। तो अब यहाँ से क्या हो गया कि 1+P+Q = 0, तो 1+P+Q = 0, तो 1+P+Q = 0। जब 1+P+Q = 0 होता है, तो पार्ट ऑफ सी एफ हमारा क्या होता है, तो देन द पार्ट ऑफ सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके लिए क्या हो जाएगा, y = e⁻⁴x, मीन सेकंड हमारा ट्रायल मेथड एप्लीकेबल होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ सी एफ, दिस मेथड 1+P+Q अगर 0 आता है, तो y = e⁻⁴x इज द पार्ट ऑफ सी एफ। नाउ so after finding the part of CF, we will move to the further. So now y = v into e⁻⁴x। अब ये क्या होगी हमारी इक्वेशन 3, अब कंप्लीट सॉल्यूशन मानना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1। सो हम क्या लिखते थे, v इंटू पार्ट ऑफ सी एफ, नोन पार्ट ऑफ सी एफ, नोन पार्ट ऑफ सी एफ क्या है यहाँ पर, e⁻⁴x। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 3 को विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy/dx = v, और डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x इज e⁻x प्लस v का डिफरेंशिएशन होगा dv/dx, और इंटू e⁻x इज सेम। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, सो d2y/dx² इज इक्वल टू v इंटू e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, और v का डिफरेंशिएशन dv/dx इंटू e⁻x इज सेम। अब सेकंड टर्म पर जाएंगे, dv/dx को सेम रखा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x हो जाएगा, और dv/dx का डिफरेंशिएशन d²v/dx² इंटू e⁻x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v e⁻x प्लस 2 e⁻x और dv/dx हो जाएगा, और प्लस e⁻x d²v/dx²। अब ये दोनों डेरिवेटिव्स आ गए, अब इस वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ dy/dx एंड d²y/dx² इन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो d²y/dx² के प्लेस पे क्या आ जाएगा, v e⁻x प्लस 2 e⁻x और dv/dx हो जाएगा, और प्लस e⁻x d²v/dx²। अब अगला टर्म क्या है हमारा, जो कोफिशिएंट है वो है कोफिशिएंट इसका -2x - 1/x।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2x-1 अपॉन x और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वी ई रेज टू द पावर एक्स प्लस और डी वी अपॉन डी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। और लास्ट कोफिशिएंट क्या है, प्लस x-1 अपॉन x। तो लास्ट है हमारा प्लस x-1 अपॉन x इंटू वाई। और y की वैल्यू क्या है हमारी, v रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0। तो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, अब हमें इसे करना है रीअरेंज। तो रीअरेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज, रीअरेंज का मतलब है पहले सेकंड ऑर्डर टर्म, देन फर्स्ट ऑर्डर, देन डिपेंडेंट वेरिएबल वाई टर्म्स कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट एक ही टर्म है हमारा डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर का, तो दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब डी वी अपॉन डी एक्स के कितने टर्म्स हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स का एक तो टर्म ये रहा और एक टर्म यहाँ पर है डी वी अपॉन डी एक्स का। तो वी कैन राइट डाउन दिस एज, तो यहाँ पर हमने कोफिशिएंट लिख रहे हैं, तो टू ई रेज टू द पावर एक्स तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर क्या कोफिशिएंट आएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2x-1 अपॉन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स और इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये दोनों टर्म्स हमने लिख दिए। अब रहा हमारा v, v, और v का कोफिशिएंट क्या है हमारा, ई रेज टू द पावर एक्स है, ये रहा v का टर्म, और यहाँ पर भी v है, और v इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, v का कोफिशिएंट आएगा 2x-1 अपॉन एक्स और इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा प्लस x-1 अपॉन एक्स और इंटू ई रेज टू द पावर एक्स और इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब देखो इसमें ई रेज टू द पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है सब में, तो एक स्टेप और लिख देंगे हम, तो यहाँ से ई रेज टू द पावर एक्स भी हम कॉमन ले लेंगे। ये तो सिंगल टर्म था ही, अब इसमें से भी ई रेज टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो सिंपली कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा। अपॉन एक्स, यहाँ से ई रेज टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया और डी बी अपॉन डी एक्स हो गया, और यहाँ से भी ई रेज टू पावर एक्स कॉमन लेंगे तो 1 - 2x-1 अपॉन एक्स और प्लस x-1 अपॉन एक्स इंटू वी ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे बोला था कि अगर हमारी कैलकुलेशन सही है, तो अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो जो कोफिशिएंट ऑफ v है वो शुड बी जीरो, जीरो होना चाहिए। और जीरो होने के लिए मैंने क्या बोला था, ये जो कोफिशिएंट आएगा वो ऑलवेज पार्ट ऑफ सी एफ आएगा, पार्ट ऑफ सी एफ। जैसे हमने ये पार्ट ऑफ सी एफ चेक किया ना इसका, दिस इज द पार्ट ऑफ सी एफ, 1 - 2x-1 अपॉन एक्स प्लस x-1 अपॉन एक्स। देखिए सेम टर्म आ गया, सेम टर्म आ गया, तो दैट मीन्स जो वैल्यू होगी इसकी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो चेक सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि पार्ट ऑफ सीएफ में आपने सॉल्व किया है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, तो देन यू कैन राइट डाउन दिस एज ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, तो 2 - 2x-1 अपॉन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स इज जीरो इक्वल टू जीरो। तो वी कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इट इज टू द पावर एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वी कैन डिवाइड, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस और 2x-1 अपॉन एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। so dv upon dx is equal to 0, so now this can be reduced in this form। ओके, अब एक इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस, अब ये x से डिवाइड कर देते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो कैन बी रिटन एज 2, 2 - 2x अपॉन एक्स आएगा, और 2x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिड्यूस हो गए, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4।
Equation number 4. So we 2, 3 solutions. So this is equation number 4. अब इक्वेशन 4 आ गई। अब फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप क्या यूज करते हैं? नेक्स्ट स्टेप यूज करते हैं कि dv अपॉन जो dx है वी अज्यूम एज p, और जो dv स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर, क्योंकि इसको हमें इसमें फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? dp अपॉन dx प्लस 1 अपॉन एक्स और इंटू पी इज इक्वल टू 0। तो सिंपल फॉर्म बन गया। आरएचएस तो उसका 0 है ही, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? सेपरेबल वेरिएबल। सेपरेबल वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेशन। तो सेपरेशन करने के लिए क्या होगा? डीपी के साथ पी का टर्म्स आना चाहिए। तो यहाँ पे डीपी और इधर भी राइट डाउन एज डीएक्स। तो डीपी के साथ पी जाएगा तो डीपी अपॉन पी हो जाएगा, और डीएक्स इसके साथ चला जाएगा 1 अपॉन एक्स के। सो वी हैव सेपरेट द वेरिएबल्स, so then we integrate. So when integration, so integration of dp upon p is log p, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज log x। और जब दोनों ही log में आ रहे हैं तो उसकी जो कांस्टेंट लेंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, वो भी हम log में ही ले लेंगे, log c। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन हमारे चेंज हो जाते हैं। अब चेंज कैसे? आपने किसी ने log ले लिया, किसी ने सिंपल c ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्यूशन विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पर अब लॉग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम एन। तो पी एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। और लॉग सी, अब यहाँ से हमने एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। जब पी एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर हमारी? सी अपॉन एक्स। तो पी इक्वल टू सी अपॉन एक्स। So here we consider as constant C1, that means C1 C2 ले लेंगे। तो C1 अपॉन एक्स, अदरवाइज C और C1 लेने पड़े। तो CP इक्वल टू C1 अपॉन एक्स, और P की वैल्यू वापस करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ P। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू क्या है? dB अपॉन dx है, और dB अपॉन dx क्या है? C1 अपॉन एक्स। इक्वल टू किसकी हो गया? C1 अपॉन एक्स हो गया। अब इसको क्या कैसे लिखना होगा? इसको हम लिख देंगे, फिर वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्या हो जाएगा? dv इक्वल टू C1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो अगेन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो फिर अगेन भी इंटीग्रेट, फिर आगे इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v, और दिस इक्वल टू C1, और dx अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। और फिर अगला इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो हम चाहे लॉग में ले लें चाहे नॉन लॉग ले लें। हमने सपोज किया C2 ले लिया। So this is the value of v. So after finding the value of v, we put this value in equation number 3। और इक्वेशन नंबर 3 क्या था? क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, so y be the dependent variable, x is the independent। तो सॉल्यूशन भी किस में देना है? y में देना है। तो y इक्वल टू v ई रेज टू द पावर x। तो यही तो लिखना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो c1 इंटू लॉग एक्स और प्लस c2 इंटू ई रेज टू द पावर x। सो जो सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1 log x plus c2 into e raised to the power x। So this is the required solution of the given differential equation। और सेकंड ऑर्डर सब सॉल्व कर रहे हो, दो कांस्टेंट तो होंगे ही होंगे, C1 और C2। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड।